Hello everyone, this is Subhendu Das, your physics mentor, and welcome to our beautiful session. That is our session number 9 of our chapter Light, that is available in class 10 physics, and we are heading towards the completion of the reflection part that is included in chapter Light. And in this lecture number 9, we will discuss only the numerical portion based on the reflection of light and angle of deviation in case of plane mirror and different numericals related to mirror formula in case of spherical mirror, that is our concave mirror and convex mirror. I hope up to lecture number 8 all the contents are very clear to all of you. Next, proceed towards our lecture number 9. Let's start the topic. So our question number 1, it is given a convex mirror used for rear view on an automobile. It is well known to us. In the uses in lecture number 8, it has already been discussed. A convex mirror used for a rear view mirror on an automobile has a radius of curvature of 3 meter. So recall the content actually. Just for simplification, I am writing the formula. Our mirror formula is 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F. That is our mirror formula, which is applicable for both the spherical mirror, that is concave as well as convex. Next, हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? HI by HO, that is equal to minus V by U, that is F by F minus U, or we may write F minus V by F. टोटल लेक्चर को कंप्लीट करके आओ, तभी जाकर समझ पाओगे न्यूमेरिकल. और क्या फॉर्मूला अवेलेबल है? R इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ. ये भी एक फॉर्मूला अवेलेबल है. यस. एंड रिगार्डिंग साइन कन्वेंशन वी नो distances measured along the direction of incident ray taken as positive, opposite to direction of incident ray taken as negative, upward height with respect to principal axis taken as positive, and downward height with respect to principal axis, that is negative. And apart from this, it is mentioned the radius of curvature of convex mirror. Convex mirror का जो radius of curvature, that is always positive. So given R is equal to plus 3 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, suppose let us consider this is your convex mirror. So ये है तुम्हारा focus, this is center of curvature, and this is the bus. Suppose a bus is located 5 meter, ये तुम्हारा incident ray का direction of incident ray. तो यहाँ पे बस का डिस्टेंस क्या दे रहा है? देखो, opposite to incident ray, that is U is equal to minus 5 meter, and from pole to center of curvature, ये तुम्हारा radius of curvature which is measured along the incident ray direction, that is plus 3 meter. I think it is clear. So given U is equal to minus 5 meter. So find the position, nature and size of the image. Position का मतलब क्या है? He is asking. Nature का meaning we have to find the magnification. We know if magnification is positive, then image is virtual and direct, and if magnification is negative, the image will be real and inverted. Okay. And और क्या चीज दिखाई दे रहा है? देखो, and size of the image, that means height of the image, that is required. So as R equal to 3 meter, which implies focal length क्या होगा? R by 2, that is plus 3 by 2 meter. So after this, now you can use mirror formula for the simplification. 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F. That means 1 by V is equal to 1 by F minus 1 by U. So 1 by F का आंसर तुम्हारा 3 by 2 minus 1 by U का वैल्यू minus 5. तो ये क्या हो जाएगा? 2 by 3 plus 1 by 5. तो दोनों का एलसीएम क्या होगा? देखो, दोनों का एलसीएम हमारा होगा 15. Then 15 by 3 is 5 into 2 10 plus 15 by 5 is 3 into 1 3. ये होगा तुम्हारा 13 by 15. ये किसका वैल्यू? 1 by V का वैल्यू मिल गया हमको, that is our 13 by 15, which implies V का आंसर क्या होगा? V is equal to 15 by 13, and ये यूनिट मीटर पे अवेलेबल है, मीटर. इसको तुम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, that is equal to 1.1
1 नियरली इक्वल टू 1.1 मीटर। ये एक आंसर हो गया। देन मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है हमको। m इज इक्वल टू कितना होगा -v/u। ये जो डेसिमल पे हम लोग कैलकुलेट वैल्यू दिखाई दे रहा है उसको यूज ना करके ये फ्रैक्शन वाला वैल्यू को ऑलवेज यूज करोगे तभी जाकर इजी होगा। सो माइनस ऑफ v का आंसर मिला हमको 15/13 डिवाइडेड बाई u का वैल्यू क्या है -5। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। इसके बाद बचा हमारा 15/13 इंटू 1/5। आंसर क्या हुआ 3/+3/13। तो मैग्निफिकेशन क्या दे रहा है हमको 10। मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होने से इमेज क्या होगा व्हिच इंप्लाइज इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसके बाद वी हैव टू फाइंड व्हिच वैल्यू आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ hi। तो h वो तो ऑब्जेक्ट का हाइट तो गिवन नहीं है ना। ऑब्जेक्ट हाइट इज नॉट मेंशन्ड। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन पेपर। तो क्या लिखना चाहिए हमको वी नो m इज इक्वल टू hi/h। दैट मीन्स हाइट ऑफ द इमेज विल बी इक्वल टू mh। m का आंसर क्या हुआ 3/13। तो 3/13 दिस विल बी द आंसर। डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो और भी अच्छा होगा। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसको कॉपी करो, देखो स्क्रीनशॉट ले जाओ। Next, come to our second question. I think the first question is clear to all of you. Okay. देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रहा है देखो। तो एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। तो ऑब्जेक्ट हाइट ऑलवेज परपेंडिकुलर अपवर्ड हाइट विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होगा तुम्हारा ऑलवेज पॉजिटिव। तो गिवन दे रहा है हमको गिवन वी हैव टू मेंशन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू +4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर। तो मिरर के फ्रंट पे एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर क्योंकि ये डिस्टेंस दिस डिस्टेंस इज मेजर्ड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। देन ओके मैं डायग्राम कर रहा हूँ रफ डायग्राम देखो तभी जाकर समझ पाओगे। सपोज ये कॉन्केव मिरर हो गया। दिस इज द पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ दे रहा है 15 सेंटीमीटर। ये वाला लेंथ देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा 30। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है दैट इज 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। दैट मींस कहाँ यहीं पे सपोज ऑब्जेक्ट है। तो ये जो डिस्टेंस दैट इज योर 25 सेंटीमीटर। बार बार रफ डायग्राम में नहीं करूंगा, आगे जाकर इसको डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दे रहा है 4 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट हाइट। अभी देखो ये तुम्हारा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन I.R इंसिडेंट रे। So based on the diagram, now tell the answer. Height of the object +4, then object distance -25 और क्या दे रहा है focal length opposite to incident ray -15 सेंटीमीटर। हो गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है at what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image। तो sharp image के लिए भी क्या डिस्टेंस पूछ रहा है क्वेश्चन पे। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। नेचर मींस मैग्निफिकेशन यू हैव टू फाइंड। Size means height of the image you have to find. I think it is clear. Next proceed to the answer. So we know 1/v plus 1/u equal 1/f. So 1/v will be equal to 1/f minus 1/u. So 1/-15 minus 1/u का आंसर क्या है u का वैल्यू -2। तो कितना आ रहा है देखो -1/15 और +1/25। एलसीएम इन दोनों का क्या होगा 75। तो 75/15 5 इंटू -1 -5 प्लस 75/25 3 इंटू 1 3। तो ये आ रहा है हमारा -2/75। ठीक है इसका आंसर 1/v का वैल्यू -2/75। तो v का आंसर क्या होगा -75/2 मीन्स माइनस ऑफ 37 -37.5। इसका आंसर क्या होगा सेंटीमीटर पे यूनिट होगा। इसका यूनिट सेंटीमीटर, इसका भी यूनिट सेंटीमीटर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ v इमेज डिस्टेंस -37.5।
तो आगे जाकर इसका फ्रैक्शन वाला वैल्यू को हमको यूज करना चाहिए, वी हैव टू यूज द फ्रैक्शन वैल्यू। नेक्स्ट देखो और क्या पूछ रहा है इसके बाद, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या है, एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो माइनस वी का आंसर मिला है हमको -75/2, -75/2 होल डिवाइडेड बाई यू का वैल्यू क्या है -25। तो माइनस कैंसिल हो गया और एक माइनस बचा, -75/2 इंटू 1/25। तो इसका आंसर हुआ हमारा -3/2। मैग्निफिकेशन इज -1.5। तो मैग्निफिकेशन क्या रहा है हमारा, मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, व्हिच इंप्लाइज इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये जो रफ डायग्राम में क्या हो ना, देखो ऑब्जर्व कहाँ पे अभी बिटवीन सी एंड एफ के, तो इमेज विल फॉर्म बिटवीन इंफिनिटी एंड सी एंड उसका नेचर क्या होगा, रियल इन्वर्टेड। ओके एंड इसके बाद क्या होगा, मैग्निफिकेशन हो गया, देन वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। तो इसके बाद देखो इजीली वी कैन कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज। फर्स्ट m इज इक्वल टू hi/ho व्हिच इंप्लाइज hi इज इक्वल टू mh। m का आंसर मिला हमको -3/2, -3/2। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना 4, दैट इज -6 सेंटीमीटर, दिस इज hi। तो क्लियरली हमको ये मिल रहा है हमको v इक्वल टू -37.5, then m is equal to -1.5, hi is equal to -6 centimeter. Now you can take the screenshot of this question. After this we will proceed towards the next question. I think it is clear to all of you. Next, an object is placed at 10 centimeter in front of a converging mirror of radius of curvature 15 centimeter. पहले इसमें पता होना चाहिए what is the meaning of converging. Converging means, converging mirror का मतलब क्या है, convex mirror और concave mirror, that is concave mirror. Okay, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना, u इज इक्वल टू गिवन u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर एंड कन्वर्जिंग मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा, r इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या होगा r/2, दैट इज -15/2 सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, वेरी गुड क्वेश्चन। फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, शॉर्ट फॉर्मूला यूज करो, इजीली हो जाएगा। m, f एंड u, तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, m इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाई f माइनस u। तो m का आंसर मिल रहा है हमको, m इज इक्वल टू फोकल लेंथ कितना -15/2 डिवाइडेड बाई f माइनस u, -15/2 माइनस u का आंसर क्या है -10। तो इसका आंसर हमारा -15/2 होल डिवाइडेड बाई ये हो गया तुम्हारा -15/2 प्लस 10। फिर से एलसीएम ले जाओ, -15/2 होल डिवाइड बाई ये जो एलसीएम मिलने के बाद क्या होगा, ये 2, दिस विल बी -15 प्लस 20। अब ये 2 कैंसिल हो गया देखो, और क्या बचा -15 डिवाइडेड बाई -15 प्लस 20 दैट इज 5, ये हमारा -3। thus magnification m is equal to -3। I think it is clear to all of you. Now you check it, verify the question. देखो कितना शॉर्टकट में हो गया। इसका दूसरा प्रोसीजर भी अवेलेबल है, यू मे चूज अनदर प्रोसेस। देखो एफ गिवन अवेलेबल है, देखो एफ दिस इज यू एंड एफ एंड यू को यूज करके हम लोग बी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ मिरर फार्मूला। बी कैलकुलेट करने के बाद यू कैन सॉल्व एम इज इक्वल टू -v बाई यू, यू चेक इट। ओके, अनदर मेथड, फर्स्ट कैलकुलेट v from mirror formula and then use m is equal to -v by u। ये भी इजी लगेगा। देखो कैलकुलेशन के ऊपर फोकस करो, विदाउट द यूज ऑफ कैलकुलेटर ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन के चलेंगे। When the distance of an object from a concave mirror is decreased from 15 centimeter to 9 centimeter, the image gets magnified 3 times than that in first case. पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे था देखो, as per the given question ऑब्जेक्ट अभी 15 सेंटीमीटर पे है। सपोज यहाँ पे हमारा कॉनकेव मिरर अवेलेबल है, देखो ये हमारा कॉनकेव मिरर, लेट अस थिंक दिस इज द कॉनकेव। यहाँ से 15 सेंटीमीटर दूरी के क्या है अभी, एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर एक ऑब्जेक्ट था। देन यहाँ पे जो भी मैग्निफिकेशन, लेट द मैग्निफिकेशन एट दिस पोजीशन इज m एंड डिस्टेंस डिक्रीज हो गया अप टू 9 सेंटीमीटर। अभी डिस्टेंस क्या हुआ, u इज इक्वल टू -9 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन कितना होगा, चेंज हो गया। सपोज मैग्निफिकेशन इज m डैश। As per the question, the image gets magnified 3 times than that in first case. That means यहाँ पे क्वेश्चन अवेलेबल है m डैश इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ m। तो देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं, बात समझ पाओगे। गिवन when u is equal to -15 centimeter, let magnification is m। अच्छा देखो दोनों प्रोसेस पे, एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूं when u is equal to -9 सेंटीमीटर, let magnification is m dash। एंड दोनों केस में देखो फोकल लेंथ बराबर, क्योंकि मिरर चेंज नहीं हो रहा है। यस, सो मिरर चेंज नहीं हो रहा है मींस उसका फोकल लेंथ क्या है, फिक्स्ड है। तो इन दिस कंडीशन वी कैन राइट द रिलेशन m इज इक्वल टू f बाय f माइनस u। वेरी गुड। तो m का आंसर क्या होगा, f डिवाइडेड बाय f माइनस -15। दैट मींस m इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय f प्लस 15। ये तुम्हारा फर्स्ट केस का मैग्निफिकेशन। इन केस सेकंड केस m इज इक्वल टू f बाय f माइनस u, m डैश इसका m डैश है, m डैश इज इक्वल टू f डिवाइड बाय f माइनस -9। तो m डैश का आंसर क्या होगा, f डिवाइड बाय f प्लस 9। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या देखो बोल रहा है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द इमेज गेट्स मैग्निफाइड इन सेकंड केस, दैट मींस m डैश इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ m, 3 टाइम्स देन दैट इन फर्स्ट केस। तो फाइंड द फोकल लेंथ। तो m डैश का आंसर क्या हुआ, f बाय f प्लस 9 इज इक्वल टू f बाय f प्लस 15। आई थिंक इट इज क्लियर। सॉरी 3 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे 3 लिखा चाहिए, 3 इंटू m का वैल्यू। देन अभी क्या हुआ देखो, f कैंसिल हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू f प्लस 9 इज इक्वल टू f प्लस 15 इंटू 1, दैट इज f प्लस 15। आंसर विल बी 3f प्लस 27 इज इक्वल टू f प्लस 15। तो 3f माइनस f कितना होगा, 15 माइनस 27। तो 3f से f चला गया 2f, एंड यहाँ पे क्या होगा 15 माइनस 27, बस दैट इज -12। तो f का आंसर क्या हुआ, -6 सेंटीमीटर। आज इट इज कॉनकेव मिरर, तो उसका आंसर देखो नेगेटिव में आ रहा है। कितना आसान देखो। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन ट्वाइस थ्राइस। यस, तो f इक्वल टू -6 सेंटीमीटर, वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन। टेक द स्क्रीनशॉट। I think this question is clear to all of you. Next come to our second part. सर सेकंड पार्ट बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। An object 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. As it is convex mirror, so given radius of curvature is plus 30 centimeter, which implies focal length क्या होगा, r/2, that is 15 centimeter। और क्या गिवन डाटा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। एंड अनदर चीज क्या है देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 5 सेंटीमीटर।
तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो द पोजीशन ऑफ द इमेज, अरे वाह वेरी गुड क्वेश्चन, v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. नाउ यू कैन सॉल्व एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. So we know 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. That means 1 by v will be equal to 1 by f minus 1 by u. So 1 by 15 minus 1 by minus 20. So 1 by 15 plus 1 by, दिखाई दे रहा है, इसमें एलसीएम क्या होगा, दोनों का एलसीएम क्या है 60. 60 by 15 4 into 1 4, 60 by 23 तो 7 by 60. दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 by v. v का आंसर क्या होगा 60 by 7 सेंटीमीटर. एंड ऑप्शंस आर अवेलेबल इन डेसिमल. तो 60 by 7 में क्या होगा 8.56, देन 4 बचा 40, 8.5 सेंटीमीटर. Yes, so our option number 1 is correct answer. 8.57 centimeter. This is the answer of this question. I think it is clear to all of you. Take the screenshot. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग. A concave mirror produces 3 times magnified real image of an object. Magnified real image. So magnification क्या दिया देखो. A concave mirror produces, so magnification given क्या हुआ, given m is equal to 3. As the magnification is real, oh sorry, magnification 3 times means 3 लिख दिया मैंने. As the image is magnified, enlarged and real. Real image के लिए magnification क्या होगा negative. Put minus symbol. Of an object placed at 10 centimeter in front of it, u is equal to minus 10 centimeter. So where the image located? Very simple question. So we know m is equal to minus v by u. So m का आंसर minus 3 is equal to minus v by u का वैल्यू minus 10. ये तो माइनस माइनस देखो कैंसिल हो गया. minus 3 is equal to v by 10. v का आंसर क्या मिला हमको, v is equal to minus 3 into 10, that is minus 30 centimeter. Minus 30 centimeter is our perfect answer. Minus 30 centimeter. Very good. Take the screenshot. With this, now we'll proceed towards our next question. ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था एक्चुअली मेरे हिसाब से. अरे वाह देखो, find the angle of incidence and angle of reflection from the diagram. One of the finest question. Okay. देखो क्या होगा, ये तुम्हारा एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये एंगल कितना 35. एंड वी नो एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड नॉर्मल इस टोटल इज 90 डिग्री. एंड ये वाला एंगल नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल दैट इज एंगल आई. तो एंगल आई का वैल्यू क्या होगा 90 माइनस एंगल आई इज इक्वल टू 90 माइनस 55. 55 degree. What we know as per laws of reflection, angle I is equal to angle R, that is equal to also 55 degree. तो हमको क्या पूछ रहा है इसमें, find the angle of incidence and angle of reflection from the diagram. 55 and 55. That is our correct answer. डायग्राम करो, डायग्राम के बाद उसका आंसर पेस्ट करो. हो गया. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे. अभी देखो the question is asking an object is placed 60 centimeter in front of a concave mirror. concave mirror सामने प्लेस हो चाहे convex के सामने प्लेस हो, object distance is taken opposite to the direction of incident ray from the pole to object. So u is equal to, given u is equal to minus 60 centimeter. The real image is formed by the mirror is located 30 centimeter in front of the mirror. फिर से इमेज डिस्टेंस क्या होगा हमारा minus 30 centimeter. What is the object's magnification? हे भगवान. m is equal to formula minus v by u.
माइनस ऑफ v का आंसर -30 बाई u का वैल्यू -60। माइनस माइनस देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया और बचा हमारा -30/60 -1/2 -0.5। ये है तुम्हारा परफेक्ट आंसर। -0.5 इज आवर करेक्ट आंसर। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, an object is placed 60 centimeter in front of a convex mirror. Okay, u is equal to -60 centimeter. The virtual image is formed by the mirror located 30 centimeter behind the mirror. अरे वाह, ये तो कॉन्वेक्स मिरर दे रहा है। देखो कॉन्वेक्स मिरर एंड ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे सपोज ऑब्जेक्ट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा बिटवीन पोल एंड फोकस। यस, तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। तो वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है तो v इज इक्वल टू +30 सेंटीमीटर। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट्स मैग्निफिकेशन? सेम टू सेम देखो, m इज इक्वल टू -v/u, तो -30 डिवाइड बाई u का आंसर क्या हुआ? -60, तो +1/2 +0.5 ये होगा हमारा परफेक्ट आंसर। तो +0.5 दिस इज आवर करेक्ट आंसर एज पर द गिवन क्वेश्चन। ऑप्शन सी +0.5 हो गया। देखो नेक्स्ट, an object is placed 20 centimeter in front of a concave mirror। concave mirror पे u इक्वल टू कितना होगा? देखो -20 सेंटीमीटर। और क्या दे रहा है? concave mirror का फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। Where is the image located? We know m is equal to -v/u। सॉरी, इसको क्यों यूज करेंगे हम लोग? इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है ना, बस। तो मिरर फॉर्मूला 1/f प्लस 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/v? 1/f माइनस 1/u। 1/-25 माइनस 1/u का वैल्यू -20, तो -1/25 प्लस 1/20। आंसर कितना होगा बोलो? -1/25 प्लस 1/20, तो एलसीएम ले जाओ 100। 100/25 4 इंटू -1 -4 प्लस 100/25 इंटू 100, तो 5 - 4 क्या हुआ? 1/100। ये किसका आंसर है? 1/v, विच इम्प्लाइज v का आंसर क्या हुआ? 100 एंड ये यूनिट तो सेंटीमीटर पे है, 100 सेंटीमीटर। दैट मींस 1.0 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। अच्छा, 1.0 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, ये दो ऑप्शन अवेलेबल है। देखो, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बिहाइंड द मिरर। वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखो आंसर क्या होगा उसका? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, उस फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। थोड़ा रफ डायग्राम करके देखो, ये है तुम्हारा कॉनकेव मिरर, दिस वन इज कॉनकेव मिरर एंड दिस इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ 25, ये डिस्टेंस 25 एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20। अरे वाह, 20 मींस ऑब्जेक्ट अभी कहां पे रहे बोलो? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन एफ एंड पी। एफ एंड पी पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर, दैट विल बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। परफेक्ट। तो इसीलिए देखो v पॉजिटिव आ रहा है ना, तो बिहाइंड द मिरर हो गया आंसर। 1.0 10⁻² behind the mirror, this is our correct answer. Next, come to our next question. If a ray of light is incident on a plane mirror at an angle of 30 degree, at an angle of 30 degree, तो ये तुम्हारा कौन सा एंगल? एंगल ऑफ इंसिडेंस। देन डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेन मिरर। सो गिवन आई कितना तुम्हारा 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ डेविएशन डेल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, डेल विल बी इक्वल टू 180 - 2y। वेरी सिंपल क्वेश्चन, 180 -
2 into 30 that is 180 degree minus 60 that is equal to 120 degree is your final answer. Right, 120 degree is our correct answer. I think it is clear to all of you. Next, a plane mirror produces a magnification of dash. Okay, plane mirror पे हमको पता है actually we know in case of plane mirror, in case of plane mirror, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल इमेज, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो पता चल गया। एंड ये तुम्हारा प्लेन मिरर, सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है तो यहाँ पे क्या होगा, इसका वर्चुअल इमेज, तो इसका हाइट कितना होगा, एच ओ सपोज प्लस एच, एच आई भी क्या होगा प्लस एच, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो ये तुम्हारा यू इक्वल टू सपोज माइनस एक्स, क्योंकि ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे डायरेक्शन, एंड ये डिस्टेंस क्या होगा भी अलोंग द इंसिडेंट रे मेजर करें हम लोग, दैट इज प्लस एक्स। ओके, तो कितना होगा देखो, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको एच आई इक्वल टू एच ओ, उसका मैग्निफिकेशन पूछ रहा है भगवान, तो एच आई बाई एच ओ क्या होगा +1, दैट इज एम इज इक्वल टू +1, खत्म। यू वी को भी यूज करके भी सेम आंसर मिलेगा, देखो एम इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू, तो माइनस बी का आंसर मिला है एक्स डिवाइड बाई माइनस, सॉरी यू का आंसर क्या है माइनस एक्स, दिस इज ऑल्सो +1। यस, स्क्रीनशॉट ले जाओ जल्दी। नेक्स्ट, an object is placed 20 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter. Okay, फोकल लेंथ कितना -10 सेंटीमीटर कॉनकेव, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है रे -20। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। देन इमेज इज फॉर्मेटेड डैश, अरे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है अभी, ये 10 का 2 टाइम्स क्या है 20 ना, तो फोकस का डबल टाइम्स ऑफ फोकस, 2 टाइम्स ऑफ फोकस, वो लोकेशन क्या है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज विल फॉर्म एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इमेज विल फॉर्म एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, थोड़ा सा थिंक करो, उसके बाद परफेक्ट आंसर तुमको मिल जाएगा। हो गया, देखो नेक्स्ट, कम टू हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम, ये 35 हुआ, तो ये तुम्हारा एंगल आई, तो एंगल आई क्या होगा, टोटल एंगल तो 90 होगा ना, तो एंगल आई कितना हमारा होगा, एंगल आई इज इक्वल टू 90 माइनस 30, which implies angle R will also, ये क्वेश्चन हुआ था एक्चुअली। ओके, नेक्स्ट, a virtual image 3 times the size of object is obtained with a concave mirror of radius of curvature 24 centimeter. Okay, concave mirror means उसका radius of curvature नेगेटिव होगा -24 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितना होगा r/2, दैट इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। और क्या दे रहा है देखो, वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स द साइज, दैट मीन्स वर्चुअल इमेज मीन्स उसका हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव होगा, 3 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव, तो एच आई बाई एच ओ क्या हुआ हमारा, दैट इज +3, व्हिच इम्प्लाइज मैग्निफिकेशन हमको दे रहा है +3। और क्या गिवन दे रहा है देखो, फोकल लेंथ दे रहा है -12, एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू क्वेश्चन, तो एम एफ यू के बीच में रिलेशन क्या है, एम एफ एंड यू, ये तीनों के बीच में रिलेशन हुई नो, एम इज इक्वल टू एफ बाई एफ माइनस यू, एफ का वैल्यू क्या है देखो -12 डिवाइडेड बाई -12 माइनस यू का वैल्यू, ये होगा सॉरी पुट द वैल्यू ओनली -12 माइनस यू, एम का आंसर क्या है 3, देन ये कैंसिल करो तो क्या मिला 1 इज इक्वल टू -4 बाई
-4 by -12 माइनस u। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से -12 माइनस u इज इक्वल टू -4। तो ये होगा तुम्हारा -12 + 4 इज इक्वल टू u। तो -12 + 4 इज -8, u इज इक्वल टू -8 सेंटीमीटर। क्या दे रहा है क्वेश्चन? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, इज देयर एनी मिस्टेक? Virtual image 3 times m is equal to +3, then object distance radius of curvature 24, f is equal to -12, it is correct. The distance of the object u question mark f u equal to m by f minus u, t is equal to -12 divided by -12 minus of u, okay. The option is not given, the answer is -8 cm. I think we have completed all the question. Another question is there. This is our last question of our class. Rekha placed a juice bottle at a distance of 20 cm in front of a convex mirror, which has a focal length of 20 cm. Where the image likely to form? देखो, Rekha placed a juice bottle at a distance of 20 cm in front of convex mirror. So u is equal to -20 cm, and in front of convex mirror which has focal length 20, convex has focal length plus 20 cm. Very good. Where is the image likely to form? क्या होगा? सिंपल चीज बोलो। अरे ये कॉन्वेक्स मिरर दे रहा है। For any position of object in front of the convex mirror, the position of image will be between pole and the focus. So at a distance 10 cm in front of the mirror, in front तो नहीं होगा, तो behind होगा always. At focus in front of the mirror, at a distance of 10 cm behind the mirror, and at focus behind the mirror. Okay, when object is at infinity, image will form at focus. ये तो नहीं होगा। Yes, तो पहले कैलकुलेट करो, इमेज डिस्टेंस क्या आ रहा है? 1/v plus 1/u 1/f, 1/v is equal to 1/f minus 1/20 minus 1/-1/20, plus 1/20, तो 2/20 that is equal to 1/10। मिल गया हमारा आंसर 1/v 1/10, so v का आंसर +10 cm। तो +10 cm मीन्स इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 cm बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर हो रहा है इसलिए +10 ही आ रहा है। तो आई थिंक all the questions available in this lecture number 9, that is clear to all of you. So this is about our lecture number 9. So stay tuned for next update, that is our lecture number 10. Basically I think we'll start our refraction part, and after that we will solve so many numericals also. Okay, wait up that moment. First of all we have to cover up our syllabus actually for the beneficial of students. So kindly like, share and subscribe our channel, and for offline classes join, send the message through the email subhenduphysics101@gmail.com, or if you face any doubt regarding the topic, then you may give your suggestion or give your doubt in comment section. I am available for all of you. Thank you and have a nice day. Stay tuned for next update.